सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। आसा बाणी भगत कबीर जीओ। गज साढ़े तै तै धोतियां तेरे भाएन तग। गली जिना जप मालियां लोटे हाथ ने पग। ओए घर के संत न आखिए बनारस के ठग। ऐसे संत न मोको पावे डाला स्यो पेड़ा गटकावे। रहाओ बासन मांज चढ़ावे ऊपर काटी धोए जलावे। बसुदा खुद करे धोए चूल्हे सारे मानस खावे। ओए पापी सदा फिरै अपराधी मुखों अपरस कहावे। सदा सदा फिरै अभिमानी सगल कुटुंब दुबावे। जित को लाया तित ही लागा तैसे कर्म कमावे। कह नानक जिस सतगुर भेटै पुनरप जन्म न आवे। कह कबीर जिस सतगुर भेटै पुनरप जन्म न आवे। गुरु सवारे सत्संगी जनो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का अज का ये पावन उपदेश भगत कबीर जी की रचना तो उच्चारण की हुई यह बाणी आसा राग विच शोभत है। आओ अज के इस ज्ञान को समझ के अपने जीवन को सवारिए। केंद्री भाग विच वेखो भगत जी की रचना कह रही है, ऐसे संत न मोको भावै डाला स्यो पेड़ा गटकावे। हुण देखो वड्डे वड्डे विद्वाना ने संत के चार आखिरी लफ्ज। एक संत लफ्ज है परमात्मा लई, दूसरा है ज्ञान गुरु लई, और तीसरा जो संत लफ्ज है जेड़ा इस ज्ञान को समझ के जीवन में जिउंदा है। और चौथा संत उस इंसान लई है जेड़ा मिसयूज करता है ज्ञान की। भाव समझदा कि ज्ञान सानू की कह रहा, पर अपनी रोटी रोजी नूं तोड़न लई ऐसा उन्होंने उत्ते डिपेंड हो गया, क्योंकि पुजारी की सोच ने सानू फड़ लिया ना। गुरबाणी नूं असीं खुद नहीं पढ़िया ते परमात्मा के नाम के उत्ते ठगी मार के अपनी जीविका चलाने वाला इंसान चौथा संत उस इंसान लिए वरत्या गया है। आओ अज समझने की कोशिश करते हैं इत्थे किहड़े संत की गल हो रही है। कहंदे गज साढ़े तै तै धोतियां तेरे पाएन तग। 3.5 गज दी देखो उस समय की गल है भगत कबीर जी दे वेले। ते 3 वल मार के वो धोती बन्निया करते सन पुजारी। गली जिना जप मालियां लोटे हाथ ने पग। गल दे विच माला पाई होंदी सी ते हाथ विच लोटा फड़िया होंदा सी। ते हुण असीं अज दे समय की गल करनी है। और साडा पुजारी कौन है? साडे पुजारी हर वो लाना पुजारी है जो परमात्मा के नाम से चोला पा के लोगण राम खिलौना जाना वाली बिरती बना के साडे सामने पेश होंदे ने। ते वो की करते हैं? अज कोई सफेद वस्त्र पा के आ रहा है, कोई जोगिया कलर पा के आ रहा है, कोई केसरिया कलर पा के नाल 5-7 रखे हुए ने चेले। ते
ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ 4-5 ਚੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚਿਮਟੇ ਫੜ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਰੋਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਲੈ ਆਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਵੇਖੋ ਵੱਖਰਾ ਜੀ। ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਬੜੀ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਟੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਨਾ, ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਨ ਆਖੀਐ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠਗ। ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠਗ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ। ਵੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਸੇ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਰਤੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਬਾਸਨ ਮਾਂਜ ਚਰਾਵੇ ਉਪਰ, ਕਾਠੀ ਧੋਏ ਜਲਾਵੇ। ਕਾਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਲਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਲਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂਜਣਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਨੇ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਿਡੌਣੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚ ਦੱਬ ਕੇ, ਸੁੱਚ ਔਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸੂਦਾ ਖੋਦ ਕਰੈ ਦੋਏ ਚੂਲੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਨਸ ਖਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਹ ਪਾਲਕੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸ ਖਾਵੇ। ਵੇਖੋ
वो अपनी मनुखता खत्म कर रहे हैं, अपनी मनुखता खा रहे हैं। मनुख विखा के अपने आप अपनी मनुखता खत्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? नाल अगली पंक्ति भी पढ़ो। ओए पापी, पापी हुंदा माड़ी सोच दे नाल। वो कहते माड़ी सोच लैके आए ने, सदा फिर अपराधी। अपराध हुंदा हत्थां नाल काम करदे ते कहते माड़ी सोच दे नाल फिर माड़ा काम कर रहे ने और असीं दे रहे हैं उन्हां नूं। मुखों अपरस कहावै ते मुखों गल्लां किहड़ियां हो रहीआं परमात्मा दे ज्ञान दियां कि प्यार वालों हुण ते परमात्मा तुहाडे घर पक्का आ जाएगा। मैं चलिया वां तुहाडे घर इन्ना कुछ करके, सवेरे 2 बजे उठ के इशनान करके बह जाएंगे, क्योंकि विखाना है ना तुहानूं। घर भावें 9 बजे तक ना उठदा होवे इंसान। ते अगे वेखो सतगुरु जी कहते सदा सदा फिरै अभिमानी, सगल कोटांब डुबावै। सदा कहते उसने सदा लई अपने हंकार में अपना जीवन बना लिया है, क्योंकि मैं परमात्मा नूं पालिया ते मैं ही तुहानूं रब दे सकदा, बाकी ते कोई रब तुहानूं दे ही नहीं सकदा। कुटंब है काम इंद्रे ज्ञान इंद्रे सारे उस दे अनुसार कार्य कर रहे। लालच दे बस, लालच कुत्ते वांगू लालच उहदे अंदर ऐसा समा गया कि सारे हाथ पैर अखां कान नक सब ज्ञान इंद्रे काम इंद्रे सारे सतगुरु जी कह रहे ने डुबावै, बेड़ा गर्क कर दिता उन्होंने, क्योंकि माड़े कर्म कर रहे ने ना, अभिमान हंकार दे विच ने। ते सतगुरु जी ने वेखो हुण अगली पंक्ति वेखो, सोच गुरु नानक दी है, बेशक रसना भगत कबीर जी दी होवे। गुरु नानक साहब जी ने शब्द लिखे, जित को लाया तित ही लागा, तैसे कर्म कमावे। कहते जिधर हुण इंसान अपने आप को ला रहा है उधर ही लगेगा ना। हुण वेखो तैसे कर्म कमावे तो फिर उवें दे काम होणगे। पहला ही बिरती देश को ही बिरती बना के चले कि मैं मलेशिया जाके ते आ परमात्मा दीयां गल्लां करांगा लोकां नूं, ते इस तरह फिर अपना कार्य सिद्ध करना। साध संगत जी वो साडा एक सेवक है, पर्ची लैके बह जाएगा। जिन्हों ने भी गुरु नानक के घर में अपनी दौलत हिस्सा पाना है, गुरु नानक के घर गोलक देनी है, माफ करना गुरु नानक के घर माया देनी है, वो जाके थले पर्ची कटा लवे, उन्होंने माया सीधी गुरु नानक के घर जाएगी। और अज इंसान अपने दिमाग तो कॉमन सेंस तो काम नहीं ले। तो इसलिए सतगुरु जी कहते हैं उन्होंने इस चीज़ को पहला वेखो देश तो ही बना के चले ने, ते उही कुछ कर रहे हैं ते उवें दे काम कर रहे हैं। ते अगे वेखो लास्ट पंक्ति विच भगत जी कह रहे हैं, कह नानक जिस सतगुर भेटा। भगत कबीर जी की रचना तो बेशक लफज है, पर गुरु नानक की सोच कह रही है सिक्का जेड़ा सच दे ज्ञान भेटा दा मतलब है मिल गया। जेड़ा गुरु दे ज्ञान सच दे ज्ञान समझ गया ना, पुनरप जन्म न आवे। वो घर विच वेखो माड़ी बिरती नाल जीवन जिउंदा, पर साडे कोल आके इत्थे अपने आप को विखा रहा कि मैं रब दा एजेंट हाँ, मैं रब की प्राप्ति कर ली। क्योंकि माला वेखो माला पाई हाथ विच जेडे सरबलोह के भांडे फड़े ने, नाल 5-7 चेले रखे हुए ने। आ हुण तक पुनरप जन्म ना आवे कि उत्थे देश में जीवन कुछ हो रहा है ते साडे कोल जीवन कुछ हो रहा है। बिरती वाला कुत्ते वाला, लालच कुत्ता है ना, लब कुत्ता। सो प्यार वालों अज दे इस शब्द विच हर एक सिख नूं सतगुरु जी देखो कितनी उच्च कोटि की शिक्षा बख्श रहे हैं कि सिखा जाग। गुरु नानक के घर आके भी जे तू गुरुद्वारा होए सोझी पाइसी समझ नहीं लई तो फिर बाहर ते तू भोली जा, तेनों किसी पासे परमात्मा के ज्ञान की समझ मिलेगी। परमात्मा की समझ लेनी है तो एक ही तरीका है, और वो तरीका है गुरु का ज्ञान।
पहला गुरबाणी नूं खुद पढ़िए, फिर ज्ञान नूं समझिए और फिर ज्ञान के अनुसार जीवन नूं जीइए। उस परमात्मा की बख्शिश तो दुनिया की कोई भी ताकत प्यार वालिओ सानू वांझिया नहीं कर सकती। सारे गज के बोलो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।